Welcome children. Children, in this video we will continue with the basic terms. The next term that is coming up is loss. Again children, you have gone through this while studying mathematics as a subject. Children, the meaning of loss has two aspects. First is in front of you, that is cost price minus selling price. Meaning to say, in accountancy, as I explained in the video of profit, expenses or cost of goods sold are more than your revenues. आपके जो expenses है बच्चों वो ज़्यादा है, but business में जो आपको revenue मिला वो कम है. So in that case it is said that your cost price is more and selling price is less. So business, children, suffers loss. Children, I have taken this example. Vishal Enterprises bought goods worth rupees 1,20,000 during the year for cash or on credit, and out of these, goods worth 95,000 were sold for rupees 35,000. So children, as it is said that goods worth 95,000 means the cost of that commodity हम जिसे sell कर रहे हैं is 95,000 and we have sold it for rupees 35,000. So children, it is said that we have suffered a loss of rupees 60,000 as you can see in this calculation. That is expenses, cost of goods sold 95,000 is much more than the revenue realized. Goods बेच के जो पैसे मिले या future में मिलेंगे, it is 35,000. So children, we have suffered a loss of rupees 60,000. And children, the second aspect is any fact or activity against which the firm receives no benefit. मतलब आपने कुछ arrangements किए थे but वो ultimately किसी reason की वजह से materialize नहीं हो पाए. फॉर एग्जाम्पल हमने गुड्स खरीदे थे, स्टॉक खरीदा था, गोडाउन में रखा था, एंड दे वर बर्न्ड ड्यू टू फायर ब्रोकन आउट. तो बच्चों आग लग गई गोडाउन में और गुड्स जल गए. तो लॉस बाय फायर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लॉस. और थेफ्ट और डेकॉइटी टुक प्लेस, तो इन दैट केस बच्चों चोरी हो गए हमारे गुड्स या पैसे, यू कैन से. देन थर्ड एग्जाम्पल इज चिल्ड्रन एक्सीडेंट. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, लॉस के दो मीनिंग्स हैं. फर्स्ट इज एक्सेस ऑफ कॉस्ट प्राइस over what is called as selling price, and second, as you see, कोई भी एक्टिविटी आपने जिसके बारे में अरेंजमेंट्स किए थे, जिसके लिए अरेंजमेंट्स किए थे, बट इट डिड नॉट अकर. गुड्स रखे थे बेचने के लिए बट जल गए, या कैश चोरी हो गया, गुड्स चोरी हो गए, या कोई एक्सीडेंट हो गया, आपकी मशीन बिजनेस में फैक्ट्री में थी वो टूट गई. इन दैट केस चिल्ड्रन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉस. So children, remember that losses and expenses are different. आपने गुड्स खरीदे, सेल किए कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में, आपको प्रॉफिट हो गया. दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज एन एक्सपेंस. बट जब आपने वो गुड्स खरीदे एंड दे वर डैमेज्ड, बेच नहीं पाए उनको, देन इट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन लॉस. Children, now we have the most important two pillars of accountancy, that is the meaning of the word belongings and the meaning of the word obligations. बच्चों, let us have a glance look and understand कि belongings and obligations का मतलब क्या होता है. Children, whatsoever we call as belongings in English, in accountancy we call it as assets, and whatsoever we call as obligations in English, in accountancy children, we call it as liabilities. So children, there is a Hindi translation to the word assets, that is जायदाद, and Hindi translation for the word liabilities is हमारी जिम्मेदारियां, that is हमारी responsibilities. तो बच्चों बिजनेस की जो responsibilities होती हैं we call them as liabilities, and जो जायदाद होती है बिजनेस की children we call it as assets. Children, let us have a comparative look on both of these. Anything that a business owns are its assets, that is cash, furniture, stock, plant and machinery, land and building. And anything that a business owes, business ने किसी से पैसे लिए हैं, like business ने सबसे पहले तो businessman से ही पैसे लिए थे, तो businessman भी so called business में capital के नाम से जाना जाता है, and business उस businessman को एक जिम्मेदारी बोलता है, that is to say business has the responsibility to pay back the money of the businessmen as such. कल को जब बिजनेस बंद होगा तो चिल्ड्रन रिमेंबर, बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी मानी गई है एंड बिजनेस मैन इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी.
तो इवन बिजनेस ने जो पैसा बिजनेसमैन से कंट्रीब्यूट करवाया है, बिजनेस का वो अपना पैसा नहीं है बच्चों, बिजनेस के लिए इट इज एन ऑब्लिगेशन एज सच, दैट इज उसकी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है. As well as children, if the business has taken a loan from some bank or financial institution, तो उसे भी आप बोलोगे that it is a liability for a business. Then children, second we have anything which gives financial benefit to the business. जो भी चीज बच्चों बिजनेस को फाइनेंशियल बेनिफिट दे वो बिजनेस की एसेट है. जैसे बिल्डिंग हमारे पास है, हम वहां पे अपना ऑफिस ओपन करके बिजनेस कर रहे हैं, तो हम पैसा कमा रहे हैं. सो दैट बिल्डिंग गिव्स फाइनेंशियल बेनिफिट टू अस, पैसा कमाने का मौका दे रही है वो बिल्डिंग. सो दैट बिल्डिंग इज कॉल्ड एज एन एसेट फॉर अस. सिमिलरली बच्चों, एनीथिंग दैट क्रिएट्स फाइनेंशियल सैक्रिफाइस, अगर किसी ने बिजनेस को पैसा देकर, उधार देकर, त्याग किया, कुछ सैक्रिफाइस किया चिल्ड्रन, दैट पर्सन डूइंग सैक्रिफाइस इज नोन एज अ लायबिलिटी. चिल्ड्रन, अगर आपका बिजनेस है और मैं आपको 10,000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट पे सेल कर रहा हूं, तो आई एम द पर्सन हु इज सैक्रिफाइसिंग फॉर योर बिजनेस. तो बच्चों आपका बिजनेस मुझे लायबिलिटी बोलेगा. देन चिल्ड्रन, दिस इज द सिमिलरिटी. एनीथिंग दैट इज व्हाट अ बिजनेस ओन्स एज वेल एज ओज, वो जब तक एग्जिस्ट करती रहेगी तब तक हम उसे एसेट एज वेल एज लायबिलिटी की डेफिनेशन में लिखते रहेंगे. Then children, we consider the next example. Anything which is to be received from somebody, कोई भी पैसा बेसिकली अगर आपको अपने डेटर्स या बिल रिसीवेबल से रिसीव करना है, either today or in future, these people or these promises are also called as assets. And if any money is to be paid to somebody either today or in फ्यूचर, दैट इज क्रेडिटर्स को अगर आपने पैसे देने हैं या बिल्स पेबल के लिए आपने पेमेंट करना है बच्चों, बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज लायबिलिटीज. चिल्ड्रन, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेट कैन बी अ पर्सन, जैसे आपके डेटर्स हो गए, और ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आपने किसी दूसरे बिजनेस को कुछ क्रेडिट पे सेल किया तो वो दूसरा बिजनेस भी बच्चों आपकी एसेट ही माना जाएगा, डेटर्स माने जाएंगे. एनी प्लेस, it's a building or a shop in a shopping mall or anything like cash or stock. बच्चों asset कोई person हो सकता है आपके business के लिए, asset can be any organization for your business, asset can be a place for your business and asset can be a thing. बट बच्चों जब आप लायबिलिटी की बात करते हो तो लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं. अगर आपने क्रेडिट में किसी से गुड्स खरीदे तो योर क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी. तो चिल्ड्रन रिमेंबर, एसेट कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई चीज हो सकती है. बट चिल्ड्रन रिमेंबर वेरी प्रिसाइसली, लायबिलिटी कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज बी अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन. एनीथिंग और एनी सो कॉल्ड प्लेस कैन नेवर बी योर लायबिलिटी. अगर आपने फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा अपने ऑफिस के लिए तो दैट फर्नीचर इज एन एसेट चिल्ड्रन, एंड आपने जिस पर्सन से उस फर्नीचर को खरीदा है दैट पर्सन इज योर लायबिलिटी. चिल्ड्रन, आई रिपीट, यू हैव परचेज्ड फर्नीचर फॉर योर ऑफिस यूज फ्रॉम समबडी ऑन क्रेडिट. सो फर्नीचर इज अ थिंग, इट इज एन एसेट, बट दैट पर्सन फ्रॉम whom you have bought, it's a liability as such. So children, I hope so the basic meaning of asset and liability is clear. Anything that we own is asset and that a business owes is liability. जो monetary benefit दे वो asset, sacrifice create करे तो liability. In future अगर पैसे लेने हैं बच्चों आपको किसी से, वो इंसान आपकी asset है, और अगर आपको देने हैं पैसे तो that person is your liability. Asset can be any person or organization as well as place or thing. But children, liability can never be any place or thing. It can be only and only a person or an organization. So children, I hope so this concept of asset and liability gets clear. Next we start with their types as such. Children, now we start with what is called as various types of assets. बच्चों assets भी बहुत तरह तरह की होती हैं.
Basic classification, children, is in front of you. Assets are first and foremost categorized as long lived asset, that is जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती है. We call them as non current assets. ये बच्चों इसका नया नाम है. पुराने ज़माने में बच्चों हम इसको बोला करते थे fixed assets. So children, what is the meaning of non current assets? These are held for continued use in the business or for the purpose of producing goods or services and are not meant for resale. Like children, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, फैक्ट्री आपने इंस्टॉल की हुई है उसके अंदर, यू हैव प्लांट एंड मशीनरी इनसाइड द फैक्ट्री, यू हैव मोटर व्हीकल्स एंड यू हैव फर्नीचर. तो बच्चों ये सारी चीजें आपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदी हैं. लैंड एंड बिल्डिंग, वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, we have motor vehicles and we have furniture. बच्चों mind it, we have not bought them for the purpose of selling, we have bought them for the purpose of use. Children, take an example for clarification. आपका फर्नीचर का बिजनेस है बच्चों, जितना फर्नीचर का स्टॉक आपने बेचने के लिए खरीदा है वो तो गुड्स हो गया, बच जाएगा तो स्टॉक बोल देंगे. बट जो फर्नीचर आपने अपने ऑफिस में अपने बैठने के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज योर नॉन करंट एसेट. देन चिल्ड्रन वी हैव द सेकंड क्लासिफिकेशन कॉल्ड एज शॉर्ट लिव्ड एसेट. मतलब ये वो असेट्स होती हैं बच्चों जिनकी लाइफ कंपैरेटिवली कम है एंड दे कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. जैसे हमारे कस्टमर्स हो गए, मेजॉरिटी 1 साल में तो पैसा दे ही देंगे. बिल रिसीवेबल, रिटन प्रोमिसेस जिन कस्टमर्स से बच्चों हम लोग ने लिए हैं, दे विल ऑल्सो डेफिनेटली पे द मनी टू अस विद इन एन ईयर. देन बच्चों बचा हुआ स्टॉक इज ऑल्सो अ करंट असेट. वेरी readily in next year we can sell them. And children, the cash balance that we have as well as the money kept in the bank. So children, I repeat, debtors as well as bills receivable, within 1 year they can easily pay us the money. So called stock which is left at the end of the year, ये भी next year sell हो जाएगा. And the amount of cash that we have. So children, these are basically two type of assets classified as long lived and short lived. Children, I proceed further. Again, we reclassify the various non-current as well as current assets into 3 formats. Children, first is tangible. बच्चों जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनका है, हम उन्हें टैंजिबल बोलते हैं. लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश एंड मेनी मोर. मोटर कार इज ऑल्सो क्लासिफाइड है. इनटैंजिबल बच्चों जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो. लाइक बिजनेस की रेप्यूटेशन भी एक जायदाद है. हमारे पास किसी पर्टिकुलर चीज को मैन्युफैक्चर करने का पेटेंट है, ट्रेडमार्क है हमारे पास, कॉपीराइट्स है हमारे पास ऑथर्स के, ब्रांड नेम्स रजिस्टर्ड है हमारे पास लाइक मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज, फ्रैंचाइज अग्रीमेंट्स हैं एंड किसी चीज को बनाने की एक प्रोसीजर हमने अपने नाम पे रजिस्टर किया है. चिल्ड्रन, ये भी हमारी एसेट्स हैं बिकॉज दे हेल्प अस इन अर्निंग प्रॉफिट्स. बट आप इन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो. सो दे आर इंटैंजिबल. देन चिल्ड्रन, द थर्ड कैटेगरी इज वेस्टिंग एसेट्स. वेरी सिंपल चिल्ड्रन, assets which are consumed through being worked or used. जैसे natural resources like mines, we have oil wells, we have mineral deposits and many more like them. So children, I hope so the classification of assets is quite clear with everybody. बच्चों आगे चल रहे हैं हम लोग liabilities को समझने में. बच्चों like we had the type of assets, we have the type of liabilities also. Based on the same pattern children, long lived liability. बच्चों आपको मैंने बताया है liability का मतलब बिजनेस की जिम्मेदारियां. बिजनेस ने जिन लोगों से भी पैसा लिया है, either it is the owner named as capital, या बैंकर्स जिनसे लोन लिए हैं हमने, या बच्चों वो सप्लायर्स जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे. ये सब बच्चों हमारे बिजनेस के लिए सो कॉल्ड आर नोन एज लाइबिलिटीज एज सच. तो चिल्ड्रन, कैपिटल तो आप जानते हैं क्या होता है, नो नीड टू डिस्कस हेयर अगेन. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, बच्चों कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 1 या 2 ईयर्स के बाद करना है, दैट इज लोन्स टेकन एंड वुड बी रीपेड आफ्टर 5-7 ईयर्स, इवन यू कैन से 2-3 ईयर्स के बाद भी बोल सकते हो. तो दे आर लॉन्ग टर्म. देन वी हैव डिबेंचर्स और बॉन्ड्स.
अब सर ये डिबेंचर्स और बॉन्ड्स क्या होता है? बच्चों बड़ी कंपनीज जब लोन्स लेती हैं तो वो एक सर्टिफिकेट देती हैं उस पर्सन को जिससे उन्होंने पैसा बोरो किया है. दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड एज अ डिबेंचर और अ बॉन्ड एज सच. Then children we have short lived liabilities as such. Like children we have in assets called as long lived, we have liabilities also long lived, and like we have in assets what is called as short lived, we have in liabilities also what is called as short lived. विद इन 1 ईयर जो लाइबिलिटी बच्चों आप इजिली पे कर दें इट इज करंट लाइबिलिटी. लाइक बैंक से शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट लेना. ओवरड्राफ्ट मीन्स जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो. इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म लोन गिवन बाय द बैंक टू द बिजनेसमैन. देन बच्चों बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स यू आर वेल वर्स्ड विथ. देयर आफ्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बच्चों पेंडिंग है, टेलीफोन बिल पेंडिंग है, रेंट ऑफ द बिजनेस हाउस पेंडिंग है. दीज आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपके ऑब्लिगेशंस हैं बच्चों, जिम्मेदारियां हैं, तो वी कॉल देम एज लाइबिलिटीज. Then children, short term loans taken, like loan taken for a period of 6 months, 8 months, 1 year, 1.5 year maximum. 2 साल से ऊपर बच्चों जब जाएगा तो we will be calling it as long term liability. तो children I repeat again, those liabilities which the business owes from the owner. ओनर से जो पैसा लिया है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है. As well as बैंक से जो लोन लिया payable after 2, 3, 4, 5 years, that is also long term liability. Whereas आपने कोई भी ऐसी बोरोइंग की जो विद इन 1 ईयर आप इजिली पे कर पाओगे, लाइक वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट, वी हैव क्रेडिटर्स, वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल. चिल्ड्रन दीज आर कॉल्ड एज करंट लाइबिलिटीज. दैट इज जो करंट ईयर में पे हो जाए. दिस इज द बेसिक रीजन वाई वी कॉल इट एज करंट, बिकॉज ये करंट ईयर में आप इजिली पे कर सकते हैं. तो चिल्ड्रन आई होप सो द कॉन्सेप्ट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज as well as its types is clear to all. We'll be continuing with this in the live classes also. Thank you children.